नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का अपना एडवोकेट उज्ज्वल एक और बार हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है लॉ एंड लाइफ विद एडवोकेट उज्ज्वल। और आज जो है मैं हो चुका हूं तैयार, और आज का एक्सपीरियंस भी जो है रहने वाला है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग। क्यों? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, और वो रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वो रीज़न ये है, तो वो रीज़न जो है वो ये है कि आज जो है पापा गए हैं देहरादून कोर्ट करने, और आज जो है बाकी ऑफिस में जितने भी एडवोकेट्स हैं उन सबके साथ जो है आज मैं फर्स्ट टाइम अपेयर होने वाला हूँ कोर्ट में। और आज विदाउट पापा जो है थोड़ी नर्वसनेस भी जो है वो फील हो रही है, कॉन्शियसनेस भी जो है वो फील हो रही है, बिकॉज अभी तो मेरे को जाते हुए ही 4 to 5 डेज़ हुए हैं। और साथ ही साथ जैसे पापा रहते हैं तो एक कॉन्फिडेंस रहता है अपने में कि यस ही इज़ डूइंग समथिंग, एंड फ्रॉम behind him I am standing and listening all the things that what he is doing and all. But the thing is that today he went for Dehradun district court, and today I am on behalf of him with other advocates of office. I'm going to be appear in the court, Kodwa session court. So I'll share my this day different experience without dad. When you have just started your litigation and you've just completed your 4 to 5 days in district court or any other court, but the persons, the students or the advocates, those who are of second generation, third generation, they can relate from my they can relate from my thing, or they can relate from my mind consciousness, that how it is difficult. Basically it is not a difficult thing, and it is not a difficult part, but it is a conscious thing in your mind that today there is dad will be not there, in your court, when you go there, when you appear, or when you stand in front of honorable court. Daily you stand with your dad behind him, but when you just started your litigation and you did not know even a 1% of the things, and then suddenly someone say to you, or the situations come in your in front of you, that today you have to be prepare yourself, and today you have to be present before honorable court without your senior, without your dad. So it is the difficult part. So this experience I want to share with you all, the experience which I gain from today's court, from today's learning. I'll share it with you all so that you can also relate with me, and you can also prepare yourself when this thing happen with you in your life, and the situations, if the situations comes in your life, then you can also relate with it, and you can also be prepared for that. So these are many things I want to share with you all. As you all know, just I said that morning I went to office, then I came back from office, and then doing my homework, or you can say kitchen work. Then I groom up myself. Then now I'm leaving for office, and then I'll leave for Kodwa court. And today most probably Akshay bhai will go with me,
यानी कि अक्षय भाई उर्फ भोलू भाई, जो कि हैं मेरे ताऊ जी के बेटे. Yes, he is also an budding advocate, so he will go with me today. Basically, he used to go daily, but sometimes he used to go by himself, sometimes he used to go by with us, sometimes he used to go with other office advocates. So today I told him that please you come with me. We both will move together from here to court. Then we will, you know, attend the court, attend the district session court and district court, and the experience which I'll share with you all. That will be my first experience, and the goosebumps are also coming in my body because I told you the reason, that what is the reason behind it. And I hope so that you are that these videos of mine and the vlogs of mine and related to this law and life, the law professionals vlogs, I hope so that you are liking my vlogs. Basically now the comments and the different types of comments and DMs started coming to me. Some are saying you're doing well, you are speaking well in vlogs and all, and some are asking where are you from. Even one guy messaged me from Bangladesh and he's saying to me that hi, I'm from Bangladesh, hi from Bangladesh. So these are the things I want to tell you, and many more comments are coming. The persons, the peoples, those who are watching my vlogs, they are connecting with me, and my father's friends, and many more people are congratulating him that how are you feeling, Mr. Verma, that your second generation is now in this field and all. So these are the things, yeah. And when someone asks these things in front of you to your dad, it is an amazing thing, yeah. It is an amazing experience, and today's experience I'm going to share with you and different things. And yes, I'm going with my elder brother Akshay bhai. So जैसा भी रहता, चलिए चलते हैं. गुम जो है हम हो चुके हैं, निकलते हैं बिना किसी देरी के साथ. तो मैं ऑफिस से आ चुका हूँ, निकल रहा हूँ अब कोर्ट के लिए. और आज आप देख सकते हैं मैं जा रहा हूँ दूसरी गाड़ी से, नई वाली स्विफ्ट से. इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि इसको सर्विस पे भी देना है, तो देखते हैं, आते हुए टाइम लगता है तो इसको सर्विस पर भी जो है देकर आते हैं, तो इसकी सर्विस भी हो जाएगी और थोड़ी सी गाड़ी चल भी जाएगी. तो चलिए निकलते हैं अब यहाँ से, और भोलू भाई आ रहे हैं, फिर जो है भोलू भाई के साथ जो है हम चलते हैं कोर्ट के लिए. तो देखिए आ चुके हैं भोलू भाई भी साथ में, और अब जो है मैं और भोलू भाई निकल रहे हैं कोटद्वार सेशन कोर्ट के लिए. अटेंड करने बज चुके हैं लगभग 10 के आसपास इस समय हो चुका है टाइम, और ये देखिए हो चुकी है इवनिंग, और अब निकल रहे हैं हम यहाँ से वापस घर के लिए. तो चलिए अब चलते हैं घर और मिलते हैं आपसे डायरेक्टली घर पर या ऑफिस पर. तो जैसे कि आपने देखा, मैं आज गया था भोलू भाई के साथ कोर्ट, और कोर्ट के बाद जो है मैं वही एज़ यूजुअल घर आया, और उसके बाद जो है मैं अब आ चुका हूँ ऑफिस में इस समय. और ऑफिस में आने के बाद जो है अभी एकदम से एक दो चीज़ें हुई. वो क्या हुई कि मैटर्स थे लोगों के, तो वो आए, फिर
मैंने वो मैटर्स को थोड़ा बहुत सुना। उसके बाद मतलब थोड़ा बहुत क्या, पूरा सुना। और उसके बाद पापा से बात करी। पापा से बात करने के बाद जो है वो चीज़ें जो हैं बस हुई। उन चीज़ों को थोड़ा सा बात करी, सॉल्व करा, पापा से बात करी, जो उन्होंने सॉल्यूशन बताया वो मैंने सामने बता दिया। तो ऐसे करके जो है चीज़ें सही हो गई, सॉल्व हो गई। अब उसके बाद जो है आज का मैं बात करना चाहूँगा। आज कोर्ट में जो है वो मैंने, जैसे कि जब चीफ हो रहा था तो वो मैंने सुना। फिर उसके बाद जो है क्रॉस जब हो रहा था तो वो मैंने सुना। जब क्रॉस जो है वो डिफेंडेंट जो है वो करवाते हैं क्रिमिनल केसेस में, तो क्रॉस एग्जामिनेशन उसे कहा जाता है, तो वो मैंने सुना। मैं उस चीज़ को समझ रहा था। और जो है कल मैंने आपको बताया था 2 एडजॉर्नमेंट की जो है वो मैंने एप्लीकेशंस भी जो है वो दी थी। तो ये सारी चीज़ें रहीं। और जो है शेड्यूल आज का सही रहा, हैक्टिक तो नहीं था इतना, पर फिर भी वही है, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग लिटिगेशन एंड वर्क, सो टाइम को उसके बाद पता नहीं चल पाता है। तो इस समय राइट नाउ आई एम सिटिंग इन माई ऑफिस, और जो है मैं आप सभी से डिस्कस कर रहा हूँ बारे में, इसी चीज़ के बारे में कि कोर्ट में जो है वो आज क्या क्या हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें थी। और एक कोई फीमेल थी, डोमेस्टिक वायलेंस का भी जो था आज 2 फाइल्स डोमेस्टिक, 2 या 3 फाइल्स लगी थी डोमेस्टिक वायलेंस की भी। तो उसमें भी जो है मैंने चीज़ें सुनी। और उसके बाद जो है आज मैं आपको बताऊं, उसके बारे में भी जो है बात हुई। मैंने आज उसके बारे में भी वहाँ पर करा, क्या कहते हैं उसे याद, हाँ एक, हाँ मतलब एक आदमी था, आदमी क्या लड़का था वो, और उनकी पहले बेल हो चुकी थी। आज जो है चार्ज बनवाया गया। तो वो सब चीज़ों में भी जो है मैंने सीखा चार्ज बनवाने के लिए। और फिर उसके बाद जो है जब मैंने चार्ज बनाने के लिए वो चीज़ क्लिक करा, तो उसके बाद पता चला कि चार्ज में जो है लगभग आधा 1 घंटा लगता है। फिर उसके बाद जो है चार्ज उनका आया, और उसके बाद जो है अब जो है चार्ज जो है बेसिकली एक तरीके से क्रिमिनल केसेस में आता है, और अब जो है उनका ट्रायल रन करेगा। तो देखिए, मैं आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी खुद बहुत स्टार्टिंग फेज़ में हूँ। मैं कभी भी आपको गलत जो है चीज़ें नहीं दूंगा, कभी भी गलत चीज़ें जो हैं वो सजेस्ट नहीं करूँगा। जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपको डायरेक्टली बताया करूँगा, एज यूजुअल जो मैं बताता हूँ, क्योंकि यार ये सब चीज़ें लॉ से रिलेटेड होती हैं। कभी भी गलत, कभी मेरे हो भी जाता है, अगर कभी मेरे से गलत बाई चांस, तो अगर आप लोग जानते हैं उस चीज़ को, एंड इफ़ यू आर इन दिस फील्ड, लीगल फील्ड, तो आप उसको कमेंट करके मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बाकी मैं पापा से भी जो है क्रॉस चेक करता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ कि ये चीज़ अगर ऐसे थी तो ऐसे क्यों है, जो भी चीज़, ताकि मैं आप सभी को कभी भी रॉन्ग जो गाइडेंस है, चीज़ें हैं, वो कभी भी जो है मैं ना बताऊँ आपको, क्योंकि वो जो है वो मेरी चीज़ों पर जो है गलत इम्पैक्ट डालेगा। वो सारी चीज़ें हैं। और आज तो आपने शायद मॉर्निंग की भी क्लिप यहीं की देखी थी ऑफिस की, और इस समय ना हो तो इवनिंग, तो ये भी यहाँ की क्लिप है ऑफिस की। एक ही दाना हो गया, खैर कोई नहीं, मैं वापस आ जाता हूँ टॉपिक पर। तो ये सारी चीज़ें हैं। बात हुई, मतलब बात क्या हुई, मैंने चीज़ें देखी, सीखी। डोमेस्टिक वायलेंस की भी फाइल लगी हुई थी, और ये सारी चीज़ें हैं। और आज मैंने हाँ एक चीज़ और सीखी कि जो नकल होती है, यानी कि कॉपी जो होती है, यानी कि उन्हें आप सर्टिफाइड कॉपीज़ कह सकते हैं या कॉपीज़ कह सकते हैं, वैसे उसे हिंदी में नकल कहा जाता है। वो तब ली जाती है जब, यानी कि जैसे 2 फाइल्स होती हैं, एक आपके पास होती है आपकी क्लाइंट की, और एक सेम फाइल जो है वो
कोर्ट में होती है। तो कोर्ट की फाइल में जो जो पेपर लगे होते हैं, और अगर वो पेपर आपके पास नहीं होते एंड इफ़ यू वांट दैट पेपर्स, तो आप जो है उसके लिए नकल के लिए एक अलग से परफॉर्मा होता है पेपर में, वो आपको लिखना पड़ता है कि क्या केस है, क्या सेक्शंस उस पर लगे हुए हैं, ये सब चीज़ें हैं। उसके लिए आपको वही टिकट्स वगैरह भी लगानी पड़ती हैं, और उसके बाद आपको आई थिंक सो कुछ कॉस्ट भी देनी पड़ती है उसकी, तब जाके जो आपको वो नकल्स जो हैं, उनको नकल कहते हैं, वो मिल जाती हैं। मैंने आपको नकल से याद आया, मैंने आपको पहले तलवाना बताया था। तलवाना क्या होता है? तलवाना इज़ अबाउट इट इज़ अ कोर्ट फीस। चस्पा मैंने बताया था कि कोर्ट फीस को चिपका, चस्पा। तो ये सारी चीज़ें हैं आज की मैंने आपको बताई व्लॉग की, मतलब कोर्ट के दिनचर्या की। आज का जो है कुछ इस प्रकार से जो है वो मेरा दिन का जो है वो शेड्यूल। तो मैं आप सभी को एक और बार वीडियो में सूचित कर देना चाहता हूँ कि आज जो है मैं आपको बता रहा था कि मैंने जो एक फ़ाइल पे चार्ज बनवाया। तो मतलब मैंने क्या, साथ में ऑफिस के सारे एडवोकेट्स थे, तो उसमें क्या होता है, वकालतनामा जो है दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो नई फ़ाइल थी और ज़मानत हमने पहले ही करा रखी थी, इसलिए आज जो है वो चार्ज बनवाना था, तो वो हमने करा। और आज जो है मैंने एक चीज़ और जानी कि जो 379 होती है CRPC में, वो होती है चोरी की। और अगर आपने चोरी करी है, क्योंकि ये जो मैटर था इसमें जो हमने ज़मानत कराई थी तो उसने चोरी करी थी, तो इसलिए उस पर 379 और 411 जो है CRPC की लगी थी। क्योंकि 379 इसलिए लगती है जब आप चोरी करो, और 411 इसलिए लगती है जब आपसे वो सामान जो आपने चोरी करा अगर वो रिकवर हो जाता है, तो आप पे 411 जो है वो लगाई जाती है। तो ये जो था मैटर, ये मैंने आपको बताया। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि आज जो है क्या क्या मैंने सीखा, क्या क्या मैंने करा। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ वैसे तो, क्योंकि मैं आपको कभी गलत नहीं बताना चाहता। हम सर्च कर रहे थे ये वाला, so basically section 379 and 411 of it is, sorry by mistake, गलती से निकल गया वो CRPC, it is IPC यानी कि इंडियन पिनल कोड, डील विद थेफ्ट एंड डिसऑनेस्टली रिसीविंग stolen property respectively. Section 379 specifies the punishment for theft, which is imprisonment for up to 3 years, a fine, or both. Section 411 addresses the offences of dishonesty, receiving or retaining stolen property, knowing or having reason to believe it to be stolen. While both offences can be related, they address distinct criminal acts. तो ये चीज़ है, ये IPC की है, इंडियन पिनल कोड की है। 379 जो स्पेसिफिकली बताती है चोरी के बारे में, 411 बात करती है कि अगर आपने जो चीज़ सामान चोरी करा है और अगर वो आपसे रिकवर हो जाता है तो वो जो है माना जाएगा, और वो सॉरी वो 411 भी जो है लगेगी। तो हमने जो है उस पर उसकी बेल कराई थी, और उसके बाद हमारे मौक्किल की, और उसके बाद जो है मौक्किल में बता दो क्लाइंट, और उसके बाद जो है ज़मानत हो गई थी। तो आज जो है वो वकालतनामा साइन करके, क्योंकि वो नई फाइल है इसलिए उस पर जो है चार्ज बनवाया, और अब चार्ज बनाने के बाद जो है अब चलेगा ट्रायल। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा पूरा का पूरा आज मैंने सीखा, ये सारी चीज़ें सीखी जो कि रही काफ़ी ज़्यादा सही मेरे लिए। और आज जो है ये सारी चीज़ें मैंने सीखी, तो आशा करता हूँ आप सभी को जो है ये सारी चीज़ें जो है पसंद आ रही होंगी। मेरे ब्लॉग जो है लॉ रिलेटेड जो है वो पसंद आ रहे होंगे।
अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और जिन्होंने भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है मेरा चैनल एंड देन ऑल्सो दे आर वॉचिंग, सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू दैट प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल।